ماما چڑیا اور بابا چڑیا آج بہت خوش تھے کیونکہ آج ان کے انڈے سے بچہ نکلنے والا تھا۔ ٹنو جی، میں نے گھونسلے کی مرمت کر لی ہے، اب آپ ہمارے آنے والے بچے کے لیے کوئی میٹھا سا پھل ڈھونڈ کر لے آئیں۔ رانو، اگر میرے پیچھے سے میرا بچہ انڈے سے باہر نکل آئے تو اسے بتا دینا کہ اس کا پاپا اس کے لیے میٹھا میٹھا پھل لینے گیا ہے۔ پھر بابا چڑا اپنے گھر سے نکلتا ہے، وہ بہت تیزی سے میٹھا پھل ڈھونڈنے کے لیے جاتا ہے۔ ایک پیڑ سے اسے میٹھا پھل مل جاتا ہے، وہ میٹھا پھل توڑ کر واپس جانے لگتا ہے۔ تبھی کبوتر ٹنو چڑے کو آواز دیتا ہے۔ ٹنو چڑے، میری بات سنو۔ ٹنو چڑا وہاں رکتا ہے۔ ٹنو یار، آج تم بہت جلدی میں ہو، کیا بات ہے؟ کبوتر یار، آج میرے انڈے سے بچہ باہر آنے والا ہے، اس لیے جلدی جلدی میں اپنے بچے کے لیے یہ میٹھا پھل لے کر جا رہا ہوں۔ انڈا پھوڑتا ہے اور انڈے میں سے ایک چھوٹا سا چڑیا کا بچہ باہر آتا ہے۔ مما، میں آ گیا۔ مما، پاپا کہاں ہیں؟ میرے بیٹے، آپ کا اس دنیا میں سواگت ہے۔ آپ کے بابا آپ کے لیے میٹھا پھل لینے گئے ہیں۔ تبھی بابا چڑیا بھی آ جاتا ہے۔ آ گیا میرا بیٹا، انڈے سے باہر آ گیا۔ یہ لو بیٹا، یہ میں آپ کے لیے میٹھا پھل لایا ہوں۔ رات ہو جاتی ہے۔ کالو، یہ پڑوسی آج اتنا خوش کیوں لگ رہے ہیں؟ گوری، آج ان کے انڈے سے بچہ نکلا ہے۔ چڑیا کے پڑوس میں کوا اور کوی اپنے ایک بیٹے جگو کے ساتھ رہتے تھے۔ مگر جو بھی ہے، میرے بیٹے جیسا سندر نہیں ہوگا ان کا بچہ۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ بیٹا، اب سو جاؤ۔ رانو، تم سو جاؤ، مجھے اور کوکو کو ڈھیر ساری باتیں کرنی ہیں۔ کالو جی، لگتا ہے یہ نہ خود سوئیں گے اور نہ ہمیں سونے دیں گے۔ میں ابھی جا کر چپ کرواتی ہوں انہیں۔ غصے میں گوری کوی چڑیا کے گھر جاتی ہے۔ اب یہ بچہ تمہارے پاس ہی رہے گا۔ چڑیا، کان کھول کر سن لو، تمہاری چونچو مجھے سونے نہیں دیتی، چپ کرواؤ اسے بھی، اور تم سب بھی چپ کر کے سو جاؤ۔ آنٹی، آج میری پہلی رات ہے انڈے سے باہر، کیا ہم باتیں بھی نہ کریں؟ کوکو بیٹے، چپ کر جاؤ۔ اچھا، آپ جائیں، ہم چپ کر جائیں گے۔ پھر گوری کوی چلی جاتی ہے۔ مما، ہماری پڑوسن بہت بری ہے، یہ ہمیں بات بھی نہیں کرنے دیتی، ہم کسی اور پیڑ پر اپنا گھونسلہ بنا لیتے ہیں۔ ہاں کوکو بیٹے، جب آپ اڑنے لگ جاؤ گے تو ہم کسی دوسرے پیڑ پر اپنا گھونسلہ بنائیں گے۔ اگلی صبح ہو جاتی ہے۔ کالو، میں پہاڑوں پر جا رہی ہوں اپنی سہیلی سے ملنے۔ جاؤ جاؤ، میں اپنے ماما جی سے ملنے جا رہا ہوں۔ پھر گوری اور کالو دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ چیل سہیلی، میرے پڑوس میں چڑیا کے انڈے سے ایک چھوٹا سا بچہ باہر نکلا ہے، سنا ہے تمہیں چھوٹے بچے بہت پسند ہیں۔ ہاں گوری، چھوٹے بچے تو میرا فیورٹ بھوجن ہے۔ تو پھر آج میں اپنی سہیلی کو تازہ تازہ ماंس کھلاؤں گی۔ جب چڑیا اور اس کا پتی گھونسلے سے جائیں گے تو میں تمہیں ٹیلی فون کروں گی، بس تم جلدی سے وہاں آ جانا اور کھا لینا اس چھوٹے بچے کو۔ میرے منہ میں تو ابھی سے پانی آ رہا ہے، جلدی جاؤ سہیلی اور میرے لیے ماंس کا بندوبست کرو۔ پھر گوری کوی اپنے گھر جا کر باہر بیٹھ جاتی ہے۔ چلو کوکو کی مما، تم ندی سے پانی پی لینا اور میں کوکو کے لیے کوئی میٹھا پھل ڈھونڈ لوں گا۔ ماما بابا جلدی آنا، میں تب تک گھونسلے میں چھپ جاتا ہوں۔ پھر کوکو کے ماما اور بابا وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ گوری کوی ان دونوں کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ راستہ صاف ہے، مجھے اب اپنی سہیلی چیل کو بتانا ہوگا۔ پھر گوری کوی اپنی چیل سہیلی کا نمبر ملاتی ہے، مگر سگنل نہ ہونے کی وجہ سے فون کٹ جاتا ہے۔ مجھے اونچے پیڑ پر جانا ہوگا، یہاں تو سگنل ہی نہیں ہے۔ پھر گوری کوی اونچے پیڑ پر جا کر اپنی سہیلی چیل کو فون کرتی ہے۔ چیل سہیلی، جلدی سے آ جاؤ، راستہ صاف ہے، دونوں چلے گئے ہیں، مما بھی اور بابا بھی۔ گوری، تم نے ثابت کر دیا، تم ہی میری پکی سہیلی ہو اس جنگل میں۔ پھر گوری کوی فون بند کر دیتی ہے۔ بھوک بہت لگی ہوئی ہے، جب تک چیل اس چڑیا کے بچے کو کھائے گی میں تب تک دانا کھا لیتی ہوں۔ آدھے راستے میں جا کر مما چڑیا رک جاتی ہے۔ کوکو کے بابا، نہ جانے میرا کیوں دل گھبرا رہا ہے، میں اپنے چھوٹے سے بیٹے کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔
तो फिर आप वापस जाएं और कुकू को फूलों की टोकरी में रखकर नदी पर अपने साथ ले आएं। फिर रानू चिड़िया जल्दी से वापस अपने घर लौटती है। मम्मा, आप तो बहुत जल्दी वापस आ गई हैं। बेटे, मैं आपको लेने आई हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए। फिर रानू चिड़िया अपने बेटे कुकू को लेकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद चील भी आ जाती है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मगर मेरी सहेली गौरी झूठ क्यों बोलेगी? तो मजाक किया होगा मेरी सहेली कवि ने मेरे साथ। फिर चील वहाँ से उड़ती है। तभी उसकी नजर साथ वाले घर पर पड़ती है। वो उस घर में जाती है जहाँ कव्वे का छोटा बच्चा सो रहा था। चिड़िया का नहीं तो कव्वे का ही सही, मांस तो मांस है, क्या काला और फिर क्या गोरा। फिर चील उस छोटे बच्चे को अपने साथ ले जाती है और उसे अपने घोंसले में जाकर खा जाती है। ऐसे गौरी कवि अपने ही खोदे हुए खड्डे में गिर जाती है और चिड़ियाओं का वो परिवार हंसी खुशी का जीवन गुजारता है। बारिश का मौसम था। चिड़िया और उसकी बेटी अपने घर में समोसे बना रही थी। गुड़िया बेटी, क्या आपने समोसों के लिए आटा गूंद लिया है? हाँ मम्मा, मैंने आटा गूंद दिया है। हवा के साथ समोसों की खुशबू दूर दूर तक जा रही थी। चिड़िया के पड़ोस में एक दुष्ट कौवा और उसके जैसे ही उसकी एक पत्नी रहती थी। गौरी, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? चिड़िया के घर से आ रही होगी। जब भी बारिश होती है तो चिड़िया जरूर समोसे बनाती है। अब तो चिड़िया के घर में चोरी करना भी बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि हर बार मैं फंस जाता हूँ। अब किस तरह चिड़िया के समोसे खाऊं? वो मनहूस ऐसे ऐसे मिसालें डालती है कि खुशबू से हमारे मुंह में पानी ही नहीं रुकता। ऐसा ही है, मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है। कालू, तुम बैठो, मैं चिड़िया से झूठ बोलकर समोसे लेकर आती हूँ। फिर गौरी कवि अपने घर से निकलती है। तेज बारिश में उड़ती हुई गौरी कवि चिड़िया के घर जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। मम्मा, ऐसी तेज बारिश में कौन होगा? मैं देखती हूँ गुड़िया, शायद कोई मुश्किल में ना हो। रानू चिड़िया बाहर आती है। चिड़िया, वो है ना हरियाली तोती, उसने मुझे भेजा है। माँ आई है उसकी। हरियाली की माँ आई है? हाँ चिड़िया, बेचारी हरियाली के घर पर भोजन नहीं है, वो मेरे घर पर बैठी हुई है। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो दे दो उसे। गौरी बहन, मैंने समोसे बनाए हैं, आप अंदर आ जाओ, मैं आपको देती हूँ। फिर रानू चिड़िया गौरी कवि को अपने घर में ले जाती है। चिड़िया एक डिब्बे में गौरी कवि को कुछ समोसे डाल देती है। हरियाली से कहना कि मैंने बहुत स्वादिष्ट समोसे बनाए हैं, माँ खुश हो जाएगी ये समोसे खाकर। अच्छा चिड़िया, अब मैं चलती हूँ, हरियाली इंतजार कर रही होगी मेरा। कालू जी, जब मैंने चिड़िया से कहा कि हरियाली की माँ आई है और वो समोसे मांग रही है तो चिड़िया ने सच मान लिया। गौरी, नाम उस हरियाली की माँ का, और समोसे खाऊंगा मैं। और मैं भी, हम दोनों मिलकर ये समोसे खाएंगे। फिर वो दोनों मजे मजे से वो समोसे खा लेते हैं। दूसरे दिन बारिश भी रुक गई थी। चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया गुड़िया उठो बेटी, जाओ और हरियाली के घर से समोसों वाला बर्तन ले आओ। मम्मा, मुझे बहुत नींद आ रही है, आप चली जाएं। ठीक है गुड़िया, मैं जाती हूँ, तुम घर पर ही रहना। फिर रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है। वो हरियाली तोती के घर जाती है। हरियाली बहन, माँ चली गई क्या? माँ? क्या माँ? मेरी माँ तो पिछले महीने आई थी। क्या? तो रात में गौरी को तुमने नहीं भेजा था समोसे लेने? नहीं चिड़िया, जरूर उस कवि ने तुम्हें उल्लू बनाया होगा। मैं तो अपना खाली बर्तन लेने आई थी, बहुत झूठी है वो काली कवि। फिर रानू चिड़िया गौरी कवि के घर जाती है। उठ जाओ झूठे कव्वो, सुबह हो गई है, कहाँ है मेरा समोसों वाला बर्तन? गौरी और कालू उठ जाते हैं। क्या चिड़िया, वो बर्तन तो हरियाली के घर में है, तुम जाओ, मैं लेकर तुम्हें दे जाऊंगी। मैं हरियाली के घर से ही आई हूँ, झूठी कवि, उसने मुझे सब बता दिया है, मुझे मेरा बर्तन दो, अब मेरा समय जाया ना करो।
پھر رانو چڑیا اپنا برتن لے کر گھر چلی جاتی ہے۔ گوری پکڑے گئے، اگر تم رات میں ہی برتن واپس کر آتی تو ہم پکڑے نہ جاتے۔ رات کو بارش میں سموسے بھی میں لے کر آئی اور برتن بھی میں دینے جاتی۔ تم پیدا ہی کھانے کے لیے ہوئے ہو، کچھ کام نہ کرنا۔ ایسے ہی کچھ دن گزر جاتے ہیں۔ ایک رات کو گوری کپی کی ماں آ جاتی ہے۔ ماں کو اچانک دیکھ کر گوری کپی پریشان ہو جاتی ہے۔ گوری بیٹی اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟ کچھ نہیں ماں جی، آپ بیٹھے، میں آپ کے کھانے کے لیے کچھ لے کر آتی ہوں۔ ہاں بیٹی، بہت بھوک لگی ہے مجھے، جلدی سے لاؤ کچھ کھانے کے لیے۔ کالو، ماں آئی ہے، اس سمے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ گوری جلدی سے جاؤ اور پڑوسیوں سے کچھ لے آؤ۔ ہاں، جب تک تم ماں کو باتوں میں لگائے رکھو۔ پھر گوری کپی گھر سے نکلتی ہے۔ کالو بیٹا، یہ گوری کہاں چلی گئی؟ ساسو ماں جی وہ آپ کے لیے مٹھائی لینے گئی ہے۔ ہریالی بہن، میری ماں آئی ہے اور گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے، پلیز مجھے کچھ دے دو۔ میں چڑیا نہیں ہوں جو تم مجھے الو بنا دو گی، چل بھاگ یہاں سے۔ ہریالی، میری بہت بے عزتی ہوگی، میری بہن کچھ دے دو۔ پرنتو ہریالی گوری کپی کو گھر سے باہر نکال دیتی ہے۔ گوری کپی چڑیا کے پاس جاتی ہے۔ چڑیا بہن، میری ماں آئی ہے۔ تو پھر میں کیا کروں؟ کبھی ہریالی کی ماں آئی ہے اور کبھی تمہاری ماں، چل بھاگ یہاں سے۔ جھوٹ بولنے کے کارن کوئی بھی گوری کپی پر وشواس نہیں کرتا۔ اب سچ میں جب اس پر مشکل تھی تو کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر رہا تھا۔ اس لیے ہمیشہ سچ بولیں کیونکہ جھوٹوں پر کوئی بھی وشواس نہیں کرتا۔ آپ کا دھنیہ واد۔ چڑیا، جلدی سے اٹھو، دروازہ کھولو، مجھے تم سے بہت ضروری کام ہے۔ ایسے گوری کپی چڑیا کے دروازے پر زور زور سے دستک دے رہی تھی۔ رانو چڑیا اپنی بیٹی گڑیا کے ساتھ گھونسلے میں سو رہی تھی۔ شور سن کر چڑیا بھی اٹھ جاتی ہے۔ ارے اتنی صبح صبح کون آ گیا ہے؟ ضرور یہ پڑوسن کپی ہی ہوگی۔ چڑیا دروازہ کھولتی ہے۔ کیا ہوا گوری، اب تمہیں کیا چاہیے؟ چڑیا، مجھے آج کچھ نہیں چاہیے، بلکہ میں تو تمہیں یہ بیج دینے آئی ہوں۔ دیکھو، یہ کسی پھل کا بیج ہے، مجھے کل بھوجن ڈھونڈتے ہوئے راستے پہ ملا تھا۔ تو پھر گوری میں اس بیج کا کیا کروں گی؟ تم اسے جا کر بو دو۔ چڑیا، تمہیں تو پتا ہے کہ میں نے کبھی بیج نہیں بوئے اور نہ ہی میں اس پیڑ کی رکشا کر پاؤں گی، تم ہی ہو جو یہ کام کر سکتی ہو۔ جب یہ پیڑ بن جائے گا اور ہمیں پھل دے گا تو ہم مل کر کھائیں گی۔ لاؤ گوری یہ بیج دو، میں اسے بو دوں گی۔ پھر گوری کپی وہ بیج چڑیا کو دے کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ماما کون تھا باہر؟ گڑیا بیٹی، ہماری پڑوسن کپی تھی، یہ بیج لے کر آئی ہے۔ تمہیں تو پتا ہے کہ وہ کتنی کام چور ہے، اس لیے یہ بیج مجھے دے کر گئی ہے تاکہ میں اسے بو دوں۔ ماما یہ تو کسی میٹھے پھل کا بیج لگتا ہے، چلو گڑیا ہم اسے اپنے گھر کے پاس بو دیتے ہیں۔ پھر رانو چڑیا اپنے گھر کے پاس اس بیج کو لگانے کے لیے زمین کھود رہی تھی کہ اسے کچھ دکھائی دیتا ہے۔ گڑیا بیٹی، یہاں کچھ ہے۔ مما یہ تو کوئی صندوق ہے، اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ ہم اسے باہر نکال کر دیکھتے ہیں بیٹی۔ پھر رانو چڑیا وہ صندوق زمین سے باہر نکالتی ہے اور اسے کھول کر دیکھتی ہے۔ اس صندوق میں ڈھیر سارا سونا دیکھ کر رانو چڑیا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ ارے اس میں تو ڈھیر سارا سونا ہے۔ مما ہم امیر ہو گئے، ہم امیر ہو گئے، اب میں بڑی والی ڈال لوں گی۔ گڑیا ایسے شور مچاتی ہے۔ پھر وہ ماں بیٹی کھڈے میں بیج کو بو کر وہ صندوق لے کر وہاں سے گھر چلی جاتی ہیں۔ کبوتر یار، سنا ہے کہ چڑیا کو ایک صندوق ملا ہے۔ بلبل، میں نے سنا ہے کہ چڑیا کو ایک صندوق ملا ہے۔ کبوتر کی بات سن کر بلبل گوری کپی کے پاس جاتی ہے۔ گوری، کیا تم نے سنا ہے کہ چڑیا کو ایک صندوق ملا ہے؟ یہ بات پورے جنگل میں پھیل جاتی ہے۔ اس صندوق میں کچھ ضرور قیمتی ہوگا، میں ابھی جا کر اپنے پتی کالو کو بتاتی ہوں۔ گوری کپی بھاگتی ہے، وہ جلدی سے اپنے پتی کالو کے پاس جاتی ہے۔ کالو، تم یہاں سوئے ہوئے ہو اور وہاں چڑیا کی تقدیر بدل گئی ہے۔ کیا
क्या हुआ बताओ तो, चिड़िया को क्या हुआ है? होना क्या है, चिड़िया को एक बड़ा संदूक मिला है। क्या? कोरी, हो ना हो उस संदूक में बहुत बड़ा खजाना होगा। कालू जी, किसी न किसी तरह से हमें चिड़िया से वो संदूक लेना होगा। वो छोटी चिड़िया मुझसे ज्यादा अमीर नहीं हो सकती। मैं अभी जाता हूँ चिड़िया के पास। चलो कालू, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। फिर वो दोनों पति पत्नी चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, लाओ ये संदूक तुम हमें दे दो। क्यों? ये संदूक हमें मिला है, हम तुम्हें क्यों दें? ये संदूक मेरे दादाजी ने उस बड़े पेड़ के पास छुपाया था। तब तब मैं बहुत छोटा सा था, मुझे आज भी अच्छे से याद है। ये झूठ है, मैं नहीं मानती। तू ऐसे नहीं मानेगी, मैं अभी सभी पक्षियों को बुला कर लाती हूँ। चल कालू। फिर वो पति पत्नी वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, अब ये कभी हमसे लड़ाई जरूर करेंगे। जो भी होगा देखा जाएगा। गुड़िया, अब मैं भी इस कवि से डरने वाली नहीं हूँ। मम्मा, गोरी आंटी को क्या मालूम कि इस संदूक के अंदर क्या है। हम इस संदूक से सोना निकाल लेते हैं और खाली संदूक गोरी आंटी को दे देते हैं। हाँ गुड़िया बेटी, हम ऐसा ही करेंगे। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। फिर वो माँ बेटी उस संदूक से सारा सोना निकालकर एक पोटली में रख लेती हैं। शाम होने से पहले गोरी और कालू कबूतर और तोते को साथ लेकर आते हैं। सब सुन लो, चिड़िया से कहो कि ये संदूक सीधे से मुझे दे दे, वरना मुझे छीनना भी आता है। चिड़िया बहन, अगर कौवा ऐसा कह रहा है तो आप ये संदूक कौवे को दे दें। ये निशानी है मेरे ससुर जी की, मैं इसे लेकर ही रहूंगी। लेकिन मेरी एक शर्त है। अच्छा, वो क्या? इस संदूक में जो भी होगा वो हम आधा आधा बांट लेंगी। ये सुनकर वो कौवे खुश हो जाते हैं। हाँ हाँ चिड़िया, जो भी होगा वो आधा आधा। तो फिर जल्दी से संदूक को खोलो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि इस संदूक में आखिर है क्या। तो फिर गोरी, तुम खुद ही इसे खोल कर देखो कि इसमें क्या है। गोरी कभी वो संदूक खोलती है, मगर संदूक अंदर से खाली था, क्योंकि उसमें से सारा सोना तो चिड़िया ने पहले ही निकाल लिया था। कालू, ये तो खाली है। गोरी, अब ये न कहना कि ये संदूक में से मैंने कुछ निकाल लिया है। कालू, हो सकता है तुम्हारे दादा ने इस संदूक को खाली ही जमीन में दबाया हो। कालू, इस संदूक में कुछ हो ना हो, मगर तुम्हें अपने दादा की निशानी तो मिल गई। जाओ, अभी से ले जाओ। फिर गोरी और कालू वो खाली संदूक लेकर वहाँ से चले जाते हैं और मामा चिड़िया वो सोना बेचकर अपनी जिंदगी आराम से गुजारती है। कबूतर उड़ता हुआ पहाड़ों की ओर जाता है। पहाड़ों के पास एक बड़ी सी और लंबी बेल थी, जिस पर एक बड़ा सा हरे रंग का फल लगा हुआ था। ये कैसा फल है? मैंने ऐसा फल तो पहले कभी नहीं देखा। आखिर ये क्या हो सकता है? ये खाने लायक भी है कि नहीं? मैं चिड़िया बहन को बुला कर लाता हूँ। फिर कबूतर जल्दी से वापस उड़ता है और वो रानू चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, मैंने पहाड़ों के पास एक बहुत बड़ा फल लगा हुआ देखा है। तुम मेरे साथ चलो और चलकर देखो क्या वो फल खाने के लायक है। कबूतर भैया, जैसे आप बता रहे हो ऐसे बड़े फल के बारे में मैंने तो पहले कभी नहीं सुना। जाकर देखते हैं। फिर रानू चिड़िया कबूतर के साथ जाती है। कबूतर भैया, ये तो बहुत बड़ा फल है, हो ना हो ये जरूर कोई जहरीली चीज होगी। तभी उड़ता हुआ मिठू तोता भी वहाँ आ जाता है। ये चिड़िया, ये तो तरबूज है। मैं एक बार बहुत छोटा था, तब मैं अपनी माँ के साथ किसान के खेत में गया था। तब मेरी माँ ने मुझे ये फल खिलाया था। मुझे आज भी थोड़ा थोड़ा याद है। मिठू तोता ऐसे बात कर ही रहा था कि तभी गोरी कभी भी वहाँ आ जाती है। नाना पक्षियों, ये कोई खाने की चीज नहीं है। अगर हमने इसे खाया तो हम तुरंत ही मर जाएंगे। ये तो कोई जहरीली चीज है। गोरी की बात सुनकर मिठू तोता भी चुप कर जाता है। शायद हो सकता है मैं भूल रहा हूँगा। फिर सभी पक्षी वापस अपने घरों को चले जाते हैं। कालू जी, पहाड़ों पर तरबूज का फल है,
मैंने सभी पक्षियों को उल्लू बनाकर भेज दिया है। अब चलो हम जल्दी से वो तरबूज तोड़कर अपने घर ले आते हैं। हाँ गौरी, बड़ा तरबूज खाने से हमें कई दिनों तक दाना नहीं खाना पड़ेगा। फिर गौरी कौवी और कालू कौवा पहाड़ों की ओर चले जाते हैं। कालू कौवा तरबूज पेड़ से तोड़ लेता है। कालू कौवा वो तरबूज उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तरबूज बहुत भारी था, वो उठा नहीं पाता। कालू जी रुको, मैं ऐसा करती हूँ, घर से टोकरी लेकर आती हूँ, हम टोकरी में लेकर जाएंगे ये तरबूज। गौरी जरा जल्दी आना, इस बड़े तरबूज को देखकर मेरी भूख बढ़ रही है। फिर गौरी कौवी जल्दी से घर जाती है और घर से टोकरी लेकर वापस आती है। दोनों कौवे बहुत मुश्किल से तरबूज उठाकर टोकरी में रखते हैं। गौरी अब मैं नीचे बैठता हूँ और तुम ये टोकरी उठाकर मेरे सर पर रख दो। कालू जी ध्यान से, ऐसा ना हो कि हम इस बड़े तरबूज के नीचे ही दब जाएं। ऐसा ही होता है। गौरी कौवी टोकरी उठाकर जैसे ही कौवे पर रखती है तो कौवा उस बड़े तरबूज के नीचे दब जाता है। मर गया गौरी, मैं मर गया, ये बहुत भारी है। जल्दी करो गौरी, मुझे बाहर निकालो। गौरी कौवी तरबूज को हटाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो तरबूज को नहीं हटा पाती। कालू जी ये तरबूज तो बहुत भारी है, हमें किसी की मदद लेनी होगी। गौरी जल्दी से जाओ और किसी दूसरे पक्षी को बुला कर लाओ। कालू जी अगर मैं किसी को बुलाने गई तो सबको मालूम हो जाएगा कि हम ये तरबूज अकेले अकेले खाना चाहते थे। पता चलता है तो चल जाए गौरी, मैं यहाँ मर जाऊंगा, बस किसी तरह से तुम मुझे बचा लो। फिर गौरी कौवी उड़ती है और पास ही मिठू तोते के घर जाती है। मिठू मिठू भैया मेरे साथ चलो, मेरी मदद करो, मेरा कालू पति जी बड़े तरबूज के नीचे दब गया है, उसे बाहर निकालने में मेरी मदद करो। गौरी तुमने तो कहा था कि वो तरबूज जहरीला है, फिर तुम क्या करने गए थे वहाँ? मिठू भैया अब समय सवाल जवाब करने का नहीं है, मैं विनती करती हूँ तुम्हारी, मेरे कालू जी को बचा लो, मेरे साथ चलो। फिर मिठू तोता गौरी कौवी के साथ चला जाता है। दोनों मिठू तोता और गौरी कौवी मिलकर जोर लगाते हैं और कालू कौवे को तरबूज के नीचे से बाहर निकाल लेते हैं। गौरी अब सच सच बताओ, क्या ये खाने वाला फल है ना? हाँ मिठू, मैंने लालच किया और सोचा कि हम ये तरबूज अकेले खाएंगे, परंतु ये तरबूज तो मेरे कालू जी की जान ही लेने वाला था। मिठू जाओ सबको बुला कर लाओ, हम ये तरबूज यहीं बैठकर खाएंगे। फिर मिठू तोता जंगल में जाता है, वो रानी चिड़िया और कबूतर को साथ लेकर आता है। फिर वो सब मिलकर तरबूज खाते हैं। तरबूज अंदर से लाल, मीठा और रस भरा था। कौवे भैया ये तो अच्छा ही हुआ कि ये तरबूज आप पर गिर गया, वरना ये स्वादिष्ट फल आप दोनों अकेले ही खा जाते। गौरी और कालू दोनों बहुत शर्मिंदा थे, लेकिन वो सब जल्दी जल्दी से तरबूज खाए जा रहे थे। जंगल में गर्मी बढ़ रही थी। मिठू तोता, कबूतर और कालू कौवा तीनों एक घने पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। दोस्तों आज बहुत गर्मी है, ऐसे गर्मी के मौसम में नदी में नहाने को मन कर रहा है। हाँ कौवे मैं भी जाऊंगा। हाँ कबूतर यार मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। फिर वो तीनों दोस्त नदी के ठंडे ठंडे पानी से नहाने चले जाते हैं। कालू कौवा तो ऊंचे पेड़ पर बैठकर नदी में छलांगे लगा रहा था। वो सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। मिठू तोता और कबूतर पेड़ से छलांग लगाने के लिए डर रहे थे। कोई नहीं कर सकता, मेरी तरह पेड़ से ऊंची छलांग कोई नहीं लगा सकता। कबूतर चलो हम भी छलांग लगाते हैं। मिठू ना भाई ना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। नदी में नहाने के बाद कालू कौवा अपने दोस्तों से कहता है, यहाँ से थोड़ी दूर एक आमों का बाग है, चलो हम सब वहाँ मीठे आम खाने चलते हैं। मगर कालू कौवे वो बाग तो चील का है, वो हमें पकड़ लेगी। हो, तुम चिंता ना करो, मैंने अपने मामा जी से सीख रखा है कि चोरी कैसे करते हैं। तुम चिंता ना करो, हम अच्छे से चोरी करेंगे और आम चुरा लेंगे।
फिर कालू कौवा मिठू तोते और कबूतर को अपनी बातों में लगाकर चील के बागीचे में ले जाता है। सुनहरी चील एक बड़े आम के पेड़ के नीचे सो रही थी। तुम दोनों यहाँ बैठो, पहले मैं आम चुरा कर लाता हूँ, बाद में तुम दोनों भी आम चुरा लेना। कालू दोस्त, जरा जल्दी आना, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर कालू कौवा चुपके से जाता है और 2-3 आम चुरा लेता है। चील की आंख भी खुल जाती है। कौन कौन है पेड़ के ऊपर? चील की आवाज सुनते ही वो तीनों दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। वो सारे दोस्त दूर जाकर रुकते हैं। बच गए दोस्तों, हम बच गए। यार कौवे, अब हमें एक एक आम दे दो। ना कबूतर ना, ये आम मैंने चुराए हैं, ये आम मैं ही खाऊंगा। एक मेरा और एक मेरी पत्नी का। फिर कालू कौवा वो आम लेकर अपने घर की ओर चला जाता है। फिर मिठू तोता और कबूतर बहुत नाराज होते हैं। वो भी अपने घर की ओर चले जाते हैं। जब वो दोनों चिड़िया के घर के पास से गुजरते हैं तो चिड़िया उन्हें आवाज देती है। मिठू और कबूतर भैया, यहाँ आए, मेरी बात सुने। रानू चिड़िया की आवाज सुनकर मिठू तोता और कबूतर चिड़िया के घर जाते हैं। मिठू भैया और कबूतर भैया, ये लो, ये आम खा लो। परंतु चिड़िया बहन, ये आम कहाँ से आए? मिठू भैया, ये आम मुझे चील दी देकर गई हैं और उन्होंने ही कहा था कि ये आम मैं अपने दोस्तों को भी दे दूं। ये सुनकर मिठू तोता और कबूतर बहुत शर्मिंदा होते हैं। चिड़िया बहन, हमें माफ कर दो, हमसे आज बहुत बड़ी गलती हो गई। हम कौवे की बातों में आकर चील के बाग से आम चोरी करने चले गए। मिठू और कबूतर, तुमने अच्छा नहीं किया। तुम तो जानते हो कि वो चील हमारे जंगल के पक्षियों की रक्षा करती है। अगर चील को पता चल जाता कि आप दोनों बाग की चोरी कर रहे हो तो हमारी कितनी बेइज्जती होती, और वो कभी फिर से हमारे जंगल के पक्षियों पर विश्वास नहीं करती। फिर मिठू तोता और कबूतर चिड़िया से वादा करते हैं कि वो दोबारा कभी चोरी नहीं करेंगे। उधर गौरी का भी चोरी का आम खाकर बहुत खुश थी। कालू जी, मुझे अब कोई चिंता नहीं है, तुम तो बहुत अच्छे चोर बन गए हो। कालू जी, अब तो हम 2-2 चोरियां करेंगे, एक तुम और एक मैं। गौरी, मिठू और कबूतर भी मेरे साथ थे, मगर वो डर कर भाग गए, लेकिन मैंने फिर भी चोरी की और कामयाब हो गया। कालू जी, ये आम बहुत स्वादिष्ट हैं, कल फिर से जाकर आम चुरा कर लाना। मैं कुछ आम अपनी माँ को भी दे आऊंगी, मेरी माँ को आम बहुत पसंद है। अपनी चोरी की तारीफें सुनकर कालू कौवा बहुत खुश होता है और अगली सुबह वो फिर से चोरी करने के लिए निकल जाता है। वो मिठू तोते और कबूतर के पास जाता है। मिठू कबूतर, चलो आज फिर से चील के बाग से आम चुराने चलते हैं। नहीं कौवे, हमने चिड़िया से वादा किया है कि हम दोबारा कभी चोरी नहीं करेंगे। डर गए, मिठू और कबूतर डर गए। मैं तो चला चोरी करने, तुम दोनों यहाँ बैठकर सूखा दाना खाओ। कालू कौवा चील के बागीचे में चला जाता है। वो ढेर सारे आम तोड़ता है। वो कच्चे आम भी तोड़ता है। वो नीचे आम का ढेर लगा देता है। पीछे से चील भी आ जाती है और वो कालू कौवे को पकड़ लेती है और एक पेड़ से बांध देती है। चील दी, मुझे छोड़ दो। फिर चील एक डंडे से कालू कौवे की खूब पिटाई करती है। गोरी जल्दी जाओ, कालू पकड़ा गया है। चील दी के बाग से आम चुराते हुए कालू कौवा पकड़ा गया है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो चिड़िया? गोरी कौवी भागती है। जब गोरी कौवी पहुंचती है तो कालू कौवे की पिटाई हो रही थी। चील दी, माफ कर दो मेरे कालू जी को। मेरे कालू जी फिर कभी चोरी नहीं करेंगे। हाँ चील दी, मुझे माफ कर दो, मैं भूल के भी यहाँ नहीं आऊँगा। फिर चील कालू कौवे को छोड़ देती है। तुम दोनों सुन लो, अगर मुझे दोबारा यहाँ दिखाई दिए तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगी। फिर गोरी कौवी कालू कौवे को लेकर वहाँ से उड़ जाती है। कालू, वो देखो, सामने एक शिकारी चील आ रही है। गौरी,
हमें कोई डर नहीं है शिकारी चील से, क्योंकि ये चील काले कौवों का मांस नहीं खाती। कालू जी, अगर हम इस शिकारी चील को कोई आसान सा शिकार ढूंढ कर दें तो ये हमें खाने के लिए कुछ न कुछ दे सकती है। आसान शिकार, इसका मतलब मोटी मैना। ये सुनकर गोरिका भी हंसने लग जाती है। फिर कालू कौवा शिकारी चील के पास जाता है। चील दी, क्या हुआ? क्या कोई शिकार नहीं मिला, या फिर कोई मोटी मैना खाने का मन कर रहा है? हाँ कव्वे, मेरा मन पक्षी के मांस खाने का कर रहा है। अगर मुझे कोई मैना मिल जाए तो मेरा दिन ही बन जाएगा। अच्छा चील दी, अगर मैं तुम्हें आसान शिकार दूं तो तुम मुझे क्या दोगी? मैं तुम्हें पक्षी के बदले में दाना दूंगी, वो भी बोरी भर कर। तो ठीक है चील दी, चलो मेरे साथ। कालू कौवा जानता था कि मैना इस समय अपने घोंसले में सोई हुई है। वो चील को मैना के घोंसले के पास ले जाता है। चील दी, वो देखो मैना सोई हुई है। फिर चील जल्दी से जाती है और वो मैना को दबोच लेती है। शिकार, आसान शिकार मिल गया। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। फिर चील मैना को मारकर खा लेती है। चील दी, अब मेरा दाना कहाँ है? चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें देती हूँ ढेर सारा दाना। फिर कालू कौवा चील के साथ उसके घर जाता है। चील कालू कौवे को एक बोरी दाना दे देती है। देखा चील दी, मेरी डील कितनी अच्छी है। अगर कल भी मांस खाना हुआ तो मेरे लिए एक और बोरी दाना तैयार रखना। हाँ हाँ, मैं कल जरूर आऊंगी। फिर कालू कौवा वो बोरी लेकर अपने घर आता है। अरे वाह कालू, चील ने तो बहुत सारा दाना दिया है। कालू जी, अगर ऐसे ही चील हमें दाना देती रही तो हमें भोजन की खोज में नहीं जाना पड़ेगा। हाँ गौरी, हम चील से ऐसे ही भोजन लेते रहेंगे। कालू जी, कल चील को कौन सा पक्षी पकड़ कर देना है? कबूतर। मैंने सोचा है कि कल हम शिकारी चील को कबूतर ही देंगे। ऐसा कहते हुए कालू कौवा कबूतर के पास जाता है। कालू कौवा कबूतर से कहता है, यार कबूतर, तुम्हारी भाभी ने गाजर का हलवा बनाया है, अगर खाना है तो चलो। क्या गाजर का हलवा? हाँ मैं खाऊंगा, मैं जरूर खाऊंगा। कालू, तुम बहुत अच्छे हो जो मुझे बचाने चले आए। फिर कबूतर कालू कौवे के साथ उसके घर चला जाता है। कबूतर भैया, तुम घोंसले में ही बैठो, मैं तुम्हारे लिए गाजर का हलवा लेकर आती हूँ। ऐसा कहते हुए गोरिका भी और कालू कौवा घर से बाहर निकल जाते हैं और बाहर से घर का दरवाजा बंद कर देते हैं। कौवो, दरवाजा खोलो, मुझे तुमने अपने घर में क्यों बंद कर दिया है? गंदी आंखों वाले, थोड़ा इंतजार करो, सब मालूम हो जाएगा। थोड़ी देर बाद चील वहाँ आ जाती है। कौवो, ये लो तुम्हारे दाने की बोरी, बताओ मेरा आसान शिकार कहाँ है? शिकारी चील जी, हमने भी अपना वादा पूरा किया, हमारे घर में आसान शिकार कैद है। फिर चील दरवाजा खोलती है और जाकर कबूतर को दबोच लेती है। दुष्ट कौवो, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम भी ऐसे ही मरोगे। तुम्हें भी तुम्हारे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। कबूतर, तेरा बनेगा आज शोरबा। चील दी, इस कबूतर को जरा तेज आंच पर पकाना, ये बड़ी बातें कर रहा है। कल की तैयारी रखना कौवो, मैं तुम्हारा काम आसान करूंगी और तुम मेरा काम आसान करना। चील दी, कल हमारे लिए गुलाब जामुन लाना और हम तुम्हें देंगे चिड़िया और उसके छोटे छोटे 3 बच्चे। ठीक है काफी, मैं समय पर पहुंच जाऊंगी। फिर शिकारी चील कबूतर को ले जाती है। अगले दिन चील के पास उसकी पुरानी सहेली चील आती है। चील सहेली, अगर तुम मुझे कोई काला कौवा ला दो तो मैं तुम्हें पूरे 5,000 दूंगी। अरे सहेली, तुम काले कौवों का भला क्या करोगी? मैंने कौवों को मारकर अपनी मकई के खेत में लटकाना है ताकि दूसरे कौवे देखकर वहाँ से दूर भाग जाएं। कौवों ने मेरे मकई के खेत को पूरा खराब कर दिया है। ये सुनकर शिकारी चील बहुत खुश हो जाती है। चील गुलाब जामुन लेकर कौवों के पास जाती है। चील दी, जल्दी करें, आज मैं आपको
चिड़िया के घर में लेकर जाऊंगी। चिड़िया के नन्हे नन्हे 3 बच्चे घर में अकेले हैं। हाँ हाँ कभी मैं चाहती हूँ, पहले तुम ये गुलाब जामुन तो खा लो। फिर वो दोनों कौवे जल्दी से गुलाब जामुन खा लेते हैं। शिकारी चील ने गुलाब जामुन में बेहोश होने की दवा मिलाई हुई थी। वो कौवे मिठाई खाते ही गिर जाते हैं। एक कौवे का मिलेगा मुझे 5,000 और 2 कौवों के मिलेंगे 10,000। फिर चील उन कौवों को बांधकर अपनी सहेली चील के पास ले जाती है। जब कौवों को होश आता है तो वो शोर मचाते हैं। कालू जी, ये हम कहाँ आ गए हैं? गौरी, लगता है चील हमें ही आज अपना शिकार बनाने वाली है और वो हमारा ही शोरबा बनाकर पीने वाली है। गोरी कभी तो ये सुनते ही बेहोश हो जाती है। अब उन कौवों को अपने किए की सजा मिलने वाली थी, क्योंकि वो थोड़ी देर बाद ही मरने वाले थे। कौवों ने जो किया उन्हें उसकी सजा मिल गई, क्योंकि बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। जंगल का मौसम बदल रहा था, लेकिन बाहर आने में अभी कुछ दिन बाकी थे। उन दिनों जंगल में भोजन की बहुत कमी थी, परंतु कबूतर का घर जिस पेड़ पर था वहाँ ढेर सारे आम लगे हुए थे। कबूतर भी उन दिनों बहुत आलसी हो गया था। वो सुबह सुबह उठता, कुछ आम खाता और फिर से सो जाता। कबूतर उड़कर दूसरे पेड़ तक भी नहीं जाता था। कालू जी उठो, चलो भोजन लेने चले। गौरी, तुम्हें तो पता है कि रात से मेरे पेट में दर्द है। मुझसे नहीं चाहोगा, तुम आज अकेली ही जाकर भोजन ले आओ। कालू, तुम्हारा हर रोज नया बहाना होता है। फिर गोरी कभी अकेली ही भोजन की खोज में चली जाती है। रास्ते में गोरी कभी को रानू चिड़िया और मिठू तोता मिल जाते हैं। गोरी बहन, आज कहाँ जाना है भोजन लेने? चिड़िया बहन, आसपास तो मैं सब देख आई हूँ, मगर कहीं भी भोजन नहीं मिला। क्यों ना आज हम कबूतर के पास चले और उससे आम ले लें। हाँ हाँ गौरी, मैंने भी देखा है, कबूतर के पेड़ पर बहुत आम लगे हुए हैं। फिर वो सब अपने दोस्त कबूतर के पास चले जाते हैं। कबूतर तो अपना पेट भरकर सोया हुआ था। रानू चिड़िया कबूतर को आवाज देती है, कबूतर भैया उठो, उठो कबूतर भैया। कबूतर उठ जाता है। मेरी नींद खराब कर दी। क्या हुआ, आप सब यहाँ क्यों आए हैं? शार कबूतर, हमें कहीं से भी भोजन नहीं मिल रहा। भोजन की खोज में बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। आज तुम हमें अपने पेड़ से कुछ आम दे दो। ना जी ना, मैं अपने पेड़ से एक भी आम नहीं दूंगा। ये पेड़ भी मेरा है और इस पेड़ पर लगे आम भी मेरे हैं। गंदी आंखों वाले, इतने आम खाकर मरोगे तुम। क्या हुआ अगर तुम हम सबको भी एक एक आम दे दो तो? कबूतर भैया, मिल बांटकर खाने से भोजन का स्वाद और भी बढ़ जाता है। आप सब मुझे तंग ना करो, मुझे अकेले ही आम खाने में स्वाद आता है। अच्छा, याद रखना गंदी आंखों वाले, मैं बदला जरूर लूंगी तुमसे। फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और कबूतर फिर से सो जाता है। सभी पक्षी उड़ते उड़ते दूर पहाड़ों की ओर चले जाते हैं। तभी उन्हें वहाँ कुछ दाने चावल के मिल जाते हैं। मिल गया, हमें भी भोजन मिल ही गया। चिड़िया बहन, भोजन तो मिल गया, मगर वो कबूतर आजकल बहुत खराब हो गया है। मुझे तो अभी तक उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। कैसे घमंड कर रहा था अपने पेड़ पर। गौरी, तुम चिंता ना करो, जो घमंड करता है उसे उसकी सजा जरूर मिलती है। कबूतर ने हमारे साथ बहुत बुरा किया और हमें अपने घर से निकाल दिया। एक ना एक दिन उसे हमारी जरूरत जरूर पड़ेगी। फिर वो सभी पक्षी अपना अपना भोजन लेकर वहाँ से उड़ जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते गए। कबूतर तो आराम आराम से अपने पेड़ से आम खाता रहा और बाकी पक्षी भोजन के लिए दूर दूर तक जाते थे। फिर एक सुबह जब कबूतर सोकर उठता है तो उसके सारे आम पेड़ से टूटकर नीचे गिरे हुए थे, क्योंकि वो आम बहुत ज्यादा पककर खराब हो गए थे। अरे, मेरे तो सारे आम खराब हो गए। इससे तो अच्छा था कि मैं ये आम दूसरे पक्षियों में बांट देता।
चलो 1-2 दिन तो और सुकून से गुजर जाएंगे। फिर कबूतर एक आम उठाकर जैसे ही खाने लगता है तो वो देखता है कि आम में तो कीड़े लग चुके थे। छी छी, इन आमों में तो कीड़े पड़ गए हैं। अब मुझे दूसरे पक्षियों की तरह भोजन की खोज में जाना होगा। ऐसा सोचकर कबूतर वहाँ से उड़ता है, परंतु थोड़ा सा ही उड़ने के बाद कबूतर थक जाता है, क्योंकि वो तो कई महीनों से उड़ा ही नहीं था। इसी कारण वो बहुत आलसी हो गया था और नीचे गिर जाता है। जब दूसरे पक्षी भोजन लेकर वापस आ रहे थे तो वो मिट्ठू को गिरा हुआ देखकर वहाँ आते हैं। कबूतर भैया, आज इतने दिनों बाद आपको घोंसले से बाहर देखा है। क्या आम खत्म हो गए हैं आपके? कीड़े पड़े इस गंदी आंखों वाले के आम में। ऐसा ही है गोरी, सच में मेरे आमों में कीड़े पड़ गए हैं। मैं भोजन ढूंढने जा रहा था परंतु मुझसे उड़ा ही नहीं जा रहा। उड़ोगे भी कैसे? मुझे तो लगता है कि तुम उड़ना ही भूल गए हो। मुफ्त के आम खा खा कर तुम्हारा शरीर सुस्त हो गया है। अब पता चला, गंदी आंखों वाले चिड़िया, चलो यहाँ से। ऐसा कहते हुए गोरी कवि और मिठू तोता वहाँ से चले जाती हैं। लेकिन रानू चिड़िया कबूतर से कहती है, कबूतर भैया, ये लें कुछ दाने, आप मुझसे ले लें, क्योंकि हम आपके दोस्त हैं और हम आपको ऐसे हाल में नहीं देख सकते। लेकिन आपने जो हमारे साथ किया वो भी याद करो। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो, मैं भूल गया था कि ये आम तो 4 दिन के हैं। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर कबूतर वो दाने लेकर बहुत मुश्किल से उड़ते हुए अपने घोंसले तक जाता है। वो इतना ही उड़ने से बहुत थक जाता है। प्यारे दोस्तों, अपनी जिंदगी को इतना भी आरामदेह मत बनाओ कि समय आने पर आपसे कोई भी काम ना हो, क्योंकि फारिग रहने से शरीर सुस्त हो जाता है। आपका धन्यवाद।